मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी आसन को सहायता प्रदान करेंगे कि हम इस सदन की परंपरा और गरिमा को पूरा बनाए रखें और अपने लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनको कायम रखें। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी अपने कार्य में सफल रहें। अब मैं सचिव जी को कहता हूं कि वह सूची रखें जो अंग्रेजी और हिंदी का है, जिसमें to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024 submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024 submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons. Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Rajuthevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge, and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory-wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Shri Phaggan Singh Kulaste. मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Shri Shudeep Bandyopadhyay. Cabinet Ministers Shri Rajnath Singh.
मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तर सगळ्यात आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतली। सभागृहाच्या सदस्यत्वाची ही शपथ आहे लोकसभेच्या, आणि जशी पंतप्रधानांनी शपथ घेतली तसं 18वी लोकसभा ही अस्तित्वात आलेली आहे। पंतप्रधानांनंतर आता कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी सुरू झालेला आहे। कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नंतर राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडणार आहे। कॅबिनेट मंत्री राजनाथ सिंग, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी नुकतीच शपथ घेतली आहे। श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहांनी शपथ घेतलेली आहे। कॅबिनेट मंत्र्यांची शपथ सध्या सुरू आहे आणि यानंतर राज्यमंत्री शपथ घेतील। सकाळी 11 वाजता लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली। विरोधकांनी सगळ्यात आधी संसदेच्या प्रती आपल्या हातामध्ये घेत घोषणा देत संसद भवनामध्ये लोकसभेमध्ये प्रवेश केला। केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहाही शपथबद्ध झाले। श्री नितिन जयराम गडकरी, मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तर देशाच्या 18व्या लोकसभेमध्ये महाराष्ट्रातनं सर्वात पहिली शपथ घेणारे सदस्य ठरलेत किंवा खासदार ठरलेत नितीन गडकरी। परिवहन आणि रस्ते महामार्ग वाहतूक मंत्री। गेल्या सरकारमध्ये सुद्धा नितीन गडकरींवरती याच खात्याची जबाबदारी होती आणि अर्थातच हे खातं त्यांची सर्वात मोठी ओळख आहे। देशभरामध्ये झालेल्या अनेक डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्समध्ये नितीन गडकरींचं योगदान महत्त्वाचं राहिलंय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।